برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے شب برات۔ شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ شب برات کو کیا کرنا چاہیے؟ شب برات کی دعا کیا ہے؟ تو بیان بہت ہی زبردست ہے، پورا بیان سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ سنتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سنیے گا۔ جانتا ہے میرا بندہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بد اعمال ہے، اس کی بخشش کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ کبھی شب معراج عطا کر دی، معراج والی رات میں اس امت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی۔ کبھی ہجرت والی رات ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، اور یہ سارے راتیں گھڑیاں رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی ایک ایک گھڑی خیر و برکتوں سے اتنی بھرپور ہے کہ آدمی جان نہیں سکتا۔ ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو نہ اپنے گناہوں کا پتہ ہے نہ مولا کریم کی کریمی کا پتہ ہے، بس مستی میں وقت گزر رہا ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا، جن کے پلے نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دین ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، ان کے لیے رمضان غیر رمضان ایک جیسا ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو خدا برکت والی رات کہے وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ برکتوں کے پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، تو وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ خدا جس کو برکتوں والی رات فرمائے، اور یوں فرمایا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ ایسی عجیب رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شام ہوتے ہی عرش عظیم سے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ بندوں کو بخشنے والا بندوں کے قریب آ رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 70 ماؤں کو جتنی بچوں سے پیار ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جب بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ سیاکار بندے، گناہکار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے فسق و فجور والے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز سنتی ہے۔ پہاڑ کی غار میں کیڑی چلتی ہے، چیونٹی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کی کھڑکی کی آواز آتی ہے۔ ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا رب کس کو کہتے ہیں۔ سب کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین رب العالمین، پتہ آج تک نہ لگا کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں۔ جو بتانے آئے انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی۔ جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا، سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں، قرآن سناؤ سارے ناراض ہیں۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں، کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ حل من مستدرک، کوئی ہے روزی کا مارا، کوئی ہے مقروض، کوئی ہے تنگ دست جس کو روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، پریشان ہو، بچے رو رہے ہیں روٹی نہیں، اولاد بیمار ہے پیسہ دوا کے لیے کوئی نہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، دوست بھی منہ پھیر گئے، خیش و اقارب بھی سب دور ہو گئے۔ حل من مستدرک، آج رحمتوں والی رات آ گئی، برکتوں والی رات آ گئی، سکون والی رات آ گئی، کوئی ہے روزی کی کمی والا آج سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ آواز آتی ہے کوئی ہے بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو، کوئی ایسا جس کو گھر والے بھی جس کے تنگ آ گئے ہو، دعا مانگ رہے ہو الہی اس کو اٹھا لے، ملنے والے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر کمپیوٹر بھی تنگ آ گئے، کوئی ہے جس کو دنیا میں سب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا، آج جھولی پھیلا، آج دامن پھیلا، آج سوال کر میں اس کو تندرستی عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں دستور ہے یہ لیڈر لوگ جب آتے ہیں جس کو لیڈر منظور نہ ہو اس کو کالی جھنڈیوں سے واپس کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، واپس جاؤ واپس جاؤ، ہمیں منظور نہیں، تمہاری لیڈری ہمیں نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر، آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کرتے ہیں، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ واپس ہو جاؤ۔ چٹی داڑھی ہو گئی تمہیں آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں؟ تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں، ان پیسوں کو آگ لگا دو۔ اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھا، سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں۔ پتہ چلے گا جب چھلنے لگے گی، دور نہیں ہے وہ وقت، ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا، اندھیر کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی ہی نہیں، جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنی روزی ملے گی پورے سال میں، فیصلے کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے، تم سوئے ہوئے ہو ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے، پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، وی سی آر پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی۔ پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب تھے، مولانا عبد الغنی صاحب مرحوم، مغرب کی جماعت کروائی، سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ بس زیادہ دیر کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے، اس ملتان میں ہی ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ کون سمجھاوے؟ کون سا وہ قرآن آئے گا؟ تیرے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ قرآن تجھے نہ سمجھا سکا، نبی تجھے نہ سمجھا سکا، علماء تجھے نہ سمجھا سکے، پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے۔ برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی، اور یوں ہی گزر گئی، یوں ہی گزر گئی، تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہی رات شب برات کی رات آئی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے, میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو. آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی, اتنی لمبی دعا مانگی. فرماتی ہے میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی, آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی. میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے, میرے ہاتھ تھک گئے. تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ساری رات دعائیں مانگی, ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں. واپس ہونے لگے, میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی. دوڑ کر آئی تھی, سخت تیزی سے چل کر آئی تھی, مجھے پڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا, سانس کیسے پھول گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی. کیوں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایسی رات ہے, یہ ایسی رات ہے. مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا, بکریاں رکھتا تھا, بھیڑ بکریاں, غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا, 10 میل میں بیٹھتا تھا. 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی. یہ فرمایا عائشہ ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے. لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. اتنا انعام, اتنا اکرام, اتنی اللہ کی کریمی, اتنی اس کی مہربانی, پھر بھی محروم رہ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے. فرمایا سب کی مغفرت, مانگنے والوں کی, رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی, لیکن اس رات میں, اتنی کرم والی رات میں, اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں. شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں. اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں, پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا, حاجت روا, جاننے والا, نبی کو, ولی کو, غوث کو, قطب کو یوں سمجھنے والا میری وہ آواز سنتا ہے, وہ میرے حال سے واقف ہے, وہ میری بگڑی بنا دے گا, وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا, یہ سب سے بڑا مشرک ہے, یہ سب سے بڑا مشرک ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے, ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, توبہ قبول ہوتی ہے, مگر 3 شخص کی نہیں. پہلا وہ شخص شرک کرنے والا, دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان. اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے. ماں نے ایک بات کہی, اس نے 10 سنائی, بغیرت اولاد ہو گئی, بے شرم اولاد ہو گئی. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے کسی عبادت سے روزی میں اضافہ, کسی سے خوراک میں اضافہ, کسی سے صحت میں اضافہ, والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں, پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے, مولویوں کے پاس جائیں گے, ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے, ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے, اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں. باہر سے ملے گی. میری یہ کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین, آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا, بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے, کوئی ہماری بھی ماں, یوں سمجھے ہم تو آسمان سے برسے تھے. 2 ہو گئے. تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں. اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے, کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے, اور کوئی بدکاری کرتے ہیں, پھر تو سارے کے سارے رہ گئے. اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گھڑی 2 گھڑی کے لیے نہیں آتے, صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں, تمام رات. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں, تو ابھی سویا ہوا ہے.
अल्लाह फरमाते हैं मैं बख्शिश करने आया, मैं मगफिरत करने आया, मैं चल के आया, मैं तौबा कबूल करने आया, मैं इस्तिगफार कबूल करने आया। तुझे बदमाशी से फुर्सत ना हुई, तू टेलीविजन पे बदमाशी में मशगूल है। मैं बख्शने वाला अर्श अजीम से आसमान दुनिया पे चल के आया, तू मेरे दरवाजे पे न आया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 20 साल तक शब कदर इसी रात में देखी, शब कदर इसी रात में देखी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कई मर्तबा शब कदर इसी रात में देखी। औरतें भी मर्द भी, नबी की जुबान पे यकीन नहीं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान की जुबान पे यकीन नहीं। अगर वजीर आजम ये कह दे कि फला रात में जो जागेगा सुबह को मैं इतना इनाम दूंगा, सब कोशिश करेंगे और इत्तला करेंगे मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रही हूं, पता है मुझे इनाम मिले, और यहाँ अल्लाह जन्नत लिए खड़े हैं, इसको उम्मत सोई हुई है। दूसरे मुल्कों में इसको बड़ी रात कहते हैं। इतना एहतमाम है उन लोगों में, बहुत बड़ा एहतमाम है, तमाम औरत मर्द कोई नहीं सोता। फरमाया कि इतना इजाफा है हदीस पाक में, जिसके घर में कुत्ता हो, जिसके घर में खंजीर हो, जिसके घर में तस्वीर हो, उस घर इस रात में उसके घर में रहमत के फरिश्ते आते ही नहीं है। उम्मत को क्या परवाह है, मेराज की रात आई और चली गई, हिजरत वाली रात आई और चली गई, शबे बदर भी शबे बरात भी आएगी और चली जाएगी, हमें क्या मिलेगा। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में 53 हज फरमाए, और कई हज ऐसे हैं जो पैदल घर से चले और बैतुल्लाह तक पैदल आए, पैदल गए, मदीना मुनव्वरा भी पैदल तशरीफ ले गए, पांव चलकर वापस आए। इतना बड़ा अजीम आदमी आखिरी हज के लिए आए, बैतुल्लाह शरीफ में खड़े हैं, एक हाथ में गिलाफे काबा, एक हाथ में अपनी सफेद दाढ़ी पकड़ी हुई है और रो रहे हैं और कहते हैं इलाही मेरे पर कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरी चिट्टी दाढ़ी की लाज रख के मुझे माफ कर दे। कैसे लोग हैं ये, कितना खौफ खुदा है, किस कदर कुरान की जुबान पे यकीन है, अल्लाह के कलाम पे यकीन है कि अल्लाह ताला ने इसको लैलतुल मुबारका कहा है। खड़े हो, दिन में से ही एहतमाम होता है। रस्म करो फिर बड़े खुश हैं, मौलवी भाग भाग के पकड़ रहा है, हलवे नाल मसीत भर गई उस दिन। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या कहना। अल्लाह फरमाते हैं रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुकिनीन। जमीन आसमान का रब आज कुछ देने लगा है, यकीन करो, लेने नहीं आया, देने आया। आवाज पर आवाज आ रही है, ओ लोगो, ओ गुनाहगारो, ओ सियाकारो, ओ बदामालो, ओ रूसिया हो, मांगो, आज क्या मांगते हो, रो की मांग, अल्लाह के सामने आजिज़ी करके मांग, दामन फैला के मांग, झोली फैला के मांग, और कभी यूं कह दिया कर तेरे करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। और सरबा सुजूद हूँ मगर, सरबा सुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं। काबिल बंदगी तो हूँ, काबिल बंदगी नहीं। काबिल बंदगी तो हूँ, काबिल बंदगी नहीं। खुदा फरमाते हैं आजा, मैं तेरा दामन भर दूं, तेरी भूख को दूर कर दूं, तेरी माली मुश्किल को आसान कर दूं, तेरी मुसीबतें दूर कर दूं, तेरी हाजात को पूरा कर दूं। तुझे अगर कब्र का फिक्र है, आज मैं तुझे जन्नती बना के जाऊं। साल की रोजी का बजट तैयार हो रहा है, अगले साल की इस रात तक जितनों ने मरना है उनकी फहरिस्त भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी जाती है। मालूम नहीं
ये जो कल की शाम की रात आ रही है, हम में से किस किस का नाम उस बजट में आ जाएगा? किस किस का नाम साल में मरने वालों में आ जाएगा? पिछले साल हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आदमी जिंदा थे। इस रात में पटाखे चला रहे थे, धमाके कर रहे थे, हलवे खा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। खुदा की कसम, साल में बहाने बहाने मौका बेमौका कितने करोड़ों लोग आज कब्रों में पड़े हुए आहे भर रहे हैं। करोड़ों आदमी आज कब्रों में है। गुज़िश्ता साल इस रात में जमीन के ऊपर था, आज जमीन के नीचे है। किसी के बच्चे तड़प रहे हैं, किसी के माँ बाप रो रहे हैं, किसी के अजीज व अकारिब रो रहे हैं, पर उन्हें मौत से 1 मिनट पहले भी पता न चल सका कि आई मौत। 1 मिनट पहले भी पता न चल सका। इसलिए मजजूब कहता कि 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल के चल। तेरी क्या हस्ती है, तेरे से बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े हसीन, बड़े बड़े खूबसूरत, तुझसे बड़े बड़े कोठी बंगलों के मालिक, तुझसे ज्यादा मालदार, 1 मिनट ना लगा कब्रों में जाके आहें भर रही हैं। न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ मांग सकते हैं, मोहताज पड़े हैं, गरीब लावारिस पड़े हैं। जो हर वक्त केसबाजी में रहते थे, ये कोठी मेरी, ये बंगला मेरा, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, आज कब्र में कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मैं वो खुदा हूं जो लोगों को जिंदा जब तक चाहूं रखूं, एक सांस भी फालतू ना आने दूं। सारे साल की रोजी का मामला आज मैंने तय कर दिया। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। मरने का, जीने का, रोजी का, गुनाह माफ होने का बजट तैयार हो रहा है और आम माफी मिल रही है। कितना बदनसीब और कितना बदबख्त है और कितना लानती है वो आदमी जो इस रात में भी महरूम रह गया। कब्रिस्तान में जाना इस रात में सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए और बुजुर्गान दीन का भी ये अमल है। असल तो कोई जागने वाला ही नहीं इस रात में, और अगर जागेगा तो बेढंग का काम करेगा। सारी रात जागा, फजर की नमाज का वक्त आया, सो गया, फर्ज गुम कर दिए, नमाज ही नहीं पढ़ी सुबह की। क्या फायदा? इससे अच्छा तो ये तरीका है कि मगरिब की जमात की नमाज अदा कर, इशा की जमात की नमाज अदा कर और फजर की जमात की नमाज अदा कर, ताकि यूं ही तेरी रात सवाब में लिखे जाए, इबादत में लिखे जाए। सो भी जा, फिर भी अल्लाह कहता है 3 नमाजों में हाजिर हो गया, जमात में आ गया, मैंने तेरी सारी रात ही हाजिरी लगा दी। अब भी अगर ना आए तो चाहे थी तेरी मर्जी है, फिर क्या अल्लाह जल्ले शान का क्या बिगड़ता है? रोते रहो सारे साल, रोजी नहीं है और जी कारोबार नहीं है, अजी बर्बादी हो गई है। और बर्बादी सारे साल तो हींगता है, चीखता है, चिंगता है, लेकिन जब रात आई मांगने की तो सोया रहा, गप्पे मारता रहा यारों से, दोस्तों से। 15वीं तारीख का रोजा रखना सुन्नत है, रात को जागना सुन्नत है। और इस रात में सदका करना बहुत ज्यादा सवाब है, खैरात करना, इसलिए कि तू थोड़ा सा खर्च करेगा, अल्लाह जल्ले शान करम करके, मेहरबानी फरमा के, न जाने तेरे नसीबों में लाखों करोड़ों के फैसले फरमा दे। जब तू थोड़ा सा खर्च नहीं करता अल्लाह के नाम पे, मरता है, बीवी पे कितना खर्च करना पड़े, बीमारी पे, डॉक्टरों पे, ज्यादा से ज्यादा फीस लेने वाले डॉक्टर ढूंढता है, फलाना 200 रुपया लेता है, कोई गल नहीं, आराम आवन जाए। फलाना 300 रुपया फीस लेता है, कोई बात नहीं, खैर आ जावे, 300 की हारी कोई बात नहीं। और अगर अल्लाह के नाम पर 300 रुपया लगाना पड़ जाए, सारे घर के जिगर फट जाता है। ओए होए 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 होए, अगर एक बेटे ने ये कर दिया काम के 300 रुपया अल्लाह के नाम पे कहीं जाए, बाप का मुंह ओए अंधा थी गए, एडा तू सखी बन जा, तू तो बिल्कुल सुइया थी वैसे, हौली हौली मैनू पता चल गया, तू ही घर की खुरचन नहीं छटनी। अल्लाह ताला जल्ले शानू फरमाते हैं, मैं करीम है, मैं मेहरबान है, मैं रहीम है, मैं बंदा नवाज है, मैं अरहमुर राहिमीन है। इस रात में मांगने वाला बन जा, दिल में आराम कर ले, ताकि तुझे रात ने की तौफीक हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
मैंने अचानक मेरी आंख खुली, मैंने हुजूर करीम सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा, सजदे में आपको देखा। और फरमाती हैं कि आपने इतना लंबा सजदा किया, सजदे में इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी, इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी। हमारी अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई, मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, रोते रोते सांस घुटने लगा, मेरा दिल धड़कने लगा, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। यूं फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी देर बाद बहुत देर बाद सर मुबारक उठाया। मैंने यूं सजदे की जगह हाथ फेर कर देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं के पानी में मेरा हाथ तर हो गया। नबी सारी रात रोए, उम्मती जिंदगी भर में एक दिन भी ना रोया। कब वो वक्त आएगा, कब हम अपनी आखिरत के तालिब बनेंगे और कब ये ख्याल आवेगा कि आज तो बाल बच्चों में हूं, कल कब्र में अकेला हूंगा। इसलिए कहता है मजजूब, कहता है कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। जितना तेरा करीबी रिश्तेदार होगा, जितना तेरा करीबी दोस्त होगा, उतनी ज्यादा मिट्टी फेंकेगा। धड़ मिट्टी फेंक रहा है कब्र पे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इस मामले में मजजूब अली रहमत ने कही है। कहता कि है यहां से तुझको जाना एक दिन, है यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, अब ना गफलत में गंवाना एक दिन, और मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन। अल्लाह जल्ल शानहू के सामने जाकर खड़ा होना है, अपने नामे अमाल का हिसाब देना है, सारी जिंदगी का हिसाब किताब सामने रखना है। अल्लाह से वो रहमत की उम्मीद रख के ऐसी रातों को अपनी जिंदगी में आना गनीमत समझो। इस उम्मत में कितनी बड़ी करीमी हुई कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हमारी जिंदगी में शब बरात की रात अता फरमाई कि मांग लो मैं देने के लिए तैयार हूं। नफलें पढ़, कुरान की तिलावत कर, इस्तिगफार कर, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़, दुआएं मांग, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए, इनके उनके इसाले सवाब भी कर और अल्लाह से उनकी बख्शिश की दुआ मांग। तुमने दूसरों का सहारा ले रखा है। आज ही मुझे एक औरत कहने लगी, आज तो मेरे अब्बा की रूह को इसाले सवाब करना, मेरे अब्बा को की रूह का सवाब पहुंचाना है। मैंने बर्दस्ता कह दिया, मैंने क्यों, तेरा अब्बा है, मेरा अब्बा तो नहीं, मेरा अब्बा नहीं, मैं अपने अब्बे को बख्शूंगा, तू अपने अब्बे को बख्शती रहे। और जिन भगवानों की औलाद ऐसी है कि सारी जिंदगी में भी माँ बाप का नाम ना ले, याद ही नहीं रखते, माँ भी थी या बाप भी था, कभी दुनिया में थे, इस तरह मुसीबतों से पाला, उस गुर्बत में किस तरह से संभाला, कपड़ा पहनाया, खिलाया पिलाया, रोए धोए, एक दिन भी मारा नहीं, और आज वो कब्र में है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, बंदे तुझे तो नहीं माँ बाप से प्यार, माँ बाप तो तेरे हैं, मगर मुझे इतने प्यारे लगते हैं वो, उस वक्त तक सलाम ना फेर जब तक माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ ना मांगे। रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, पहले माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांग, फिर मेरी नमाज को खत्म कर। जालिम तू भूल गया माँ को बाप को, मैं कैसे भुलाऊं, मेरे तो वो भी बंदे थे, मेरे तो वो भी बंदे थे। अल्लाह हमारे माँ बाप पर करम फरमाए, रहम का मामला फरमाए, बख्शिश के फैसले फरमाए। अर्ज़ कर रहा था, इन रातों को गनीमत जानो कि जिंदगी में आई और चली गई, कुछ तो करो। हदीस शरीफ में आता है, मतलाइल फजर के लफ्ज हैं, अल्लाह ताला जल्ले शानहू सारी रात आवाजें लगाते हैं, सारी रात आवाजें देते रहते हैं, यहां तक के फजर हो जाती है, और खूब आवाज देते हैं कि तू अपने गुनाहों को ना देख, मैं इतने गुनाह हैं, मेरे इतने गुनाह हैं, मैं तो डूबा पड़ा हूं, मैं तो अपने गुनाहों के दरिया में गर्क हूं, मेरा क्या मुंह मांगने का। अल्लाह फरमाते, मांग के तो देख, तुझे अपने गुनाहों पे तेरी निगाह है, मेरे करम पे तेरी निगाह नहीं। तेरा अपने ऐबों पे तेरा दिमाग है, तेरी निगाह है, तेरी नजर है, तूने मेरी करम के दरिया को भी कभी तक है।
मैं तो वो अरहमुर राहिमीन हूं। तो झोली फैला कर एक दफा दो आंसू बहा के तो देख, और यूं कह के देख, या अल्लाह मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे पड़ूं, कहां जाकर के सर मारूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। फिर देख तो सही मैं क्या करता हूं। शबे मेराज वाली रात में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा इस उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं मांगी। हिजरत वाली रात में भी दुआएं मांगी। शबे मेराज में बुराक सवारी बना, शबे हिजरत में, हिजरत वाली रात में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी बन गया। अंदाजा लगा सहाबा किराम तो एक एक इशारे पे जान देते थे, कुर्बान हो जाते थे, मर मिट जाते थे। जिंदगी भर में सहाबा किराम ने इन रातों को हाथ से नहीं जाने दिया। और भूखे प्यासे एक सहाबी का वाकया बारहा मैंने सुनाया होगा कि नमाज पढ़ता है, सलाम फेरता है, फौरन भाग जाता है। सहाबा किराम भी सोचते हैं भी इसका कौन सा कारखाना है, ऐसा क्या काम है इसको जो जल्दी भाग जाता है। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई, करम की निगाह पड़ी, इशारा करके बुलाया, इधर आ। है कैसे नसीबे हैं उनको, किसी को बच्ची बुलाएगी, बेटा बुलाएगा, दोस्त बुलाएंगे, अम्मी बुलाएगी, घरवाली बुलाएगी, बहन बुलाएंगी। कितने करम वाले और मुकद्दरों वाले लोग हैं जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, मेरे पास आके बैठ गया। फरमाने लगे तुझे क्या काम है? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर न सुबह पढ़ता है न असर के वक्त पढ़ता है, बहुत जल्दी भाग जाता है। चुप हो गया, गर्दन झुका बैठा। आपने फरमाया शर्मा ना, मैं तेरा नबी हूं, गमगुसारी करूंगा, बता क्या बात है। जवान रोने लगा, कहने लगा गरीबू मुफलिसू नादारू मिस्कीनू, कपड़ा कोई नहीं, ये जो मैं तहमद बांधे बैठा हूं, मंजला बांधे बैठा हूं, मेरी बीवी का दुपट्टा है, इसलिए जल्दी चला जाता हूं। वो नमाज पढ़ती है, मैं घर में नंगा होके बैठ जाता हूं, वो सर पे कपड़ा करके नमाज पढ़ती है, गरीब है, कपड़ा कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, जल्दी चला जा, इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं है। घर गया, पहले बीवी घर में बैठी मिलती थी, आज चौखट पकड़ के बाहर झांक रही है। नाराज होके कहने लगी अपनी नमाज अदा कर ली, मेरी नमाज का फिक्र नहीं किया। तुझे खुदा के कहर से डर लगता है, मुझे भी तो डर लगता है। तूने अगर कब्र में जाना है तो मुझे भी तो कब्र में जाना है। साहबी बोला नहीं। तीसरे चौथे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गल्ला कुछ कपड़ा इसके घर भेज दिया। औरत कहने लगी क्या मदीने के हर बाशिंदे के यहाँ इतना इतना सामान गया, फिर हमारे यहाँ क्यों आया? साहबी ने बता दिया कि परसों चौथ जो तुम नाराज हुई थी, मुझे देर हो गई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया था, मैंने बता दिया था हमारी गुर्बत का, हमारी मिस्कीनी का, हमारी तंगदस्ती का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया। औरत खुश ना हुई, अब ज्यादा ख्याल रखा करेंगे, हमारे घर ज्यादा कुछ भेज दिया करेंगे। रोने लगी और कहती है क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश मैं आज से पहले मर गई होती, मैं दुनिया में जिंदा ना होती, मैं कब्र में चली गई होती। और मेरी गुर्बती, और मेरी मिस्कीनी, और मेरे दुखड़ों मेरे घर से निकल कर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। कोई खुशी पहुंचाती, कोई राहत पहुंचाती, कोई आराम की बात पहुंचाती। मेरे दुखों ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंग किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठेस लगी, मेरी गुर्बत का पता चल गया, मेरी मिस्कीनी का पता चल गया। मैंने बड़ी कोशिश की पर्दा रखने की, मगर मजबूरन पूछ लिया, बता दिया गया। मैं मर गई होती तो अच्छा था, मैं आज कब्र में होती तो अच्छा था। वकुन्तु नसियम मनसिया, लोगों की जुबानों पे मेरा नाम भी ना होता। क्या इन हजरात की नमाजें थी, क्या इन हजरात का अकीदा था। यूं फरमाती हैं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि 3-3 चांद देख लिए हमने, 3-3 चांद देख लिए हमने, नबी के घर में आग ना जली।
मुसलसल देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग न जली, और हम दौलत के लिए रात दिन मारे मारे फिरते हैं, ईमान को ठुकराते हैं, यकीन को ठुकराते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। जिस दौलत के पीछे हम लगे हैं, नबी के घर में तो महीनों महीना आग नहीं जली चूल्हे में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना खाया और बाद में रोने लग गई। किसी ने पूछा अम्मा क्या बात है? फरमाने लगी 18 बरस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रही, एक दिन भी पेट भर के खाना, अब खाने मिल रहे हैं जब मेरे नबी चले गए, अब खाने आ रहे हैं। एक एक सांस को गनीमत जानो, एक एक घड़ी को गनीमत जानो। शबे बरात की अगली रात से पहले हम में से ना जाने कौन कौन कब्र में होंगे और कौन कौन बाहर रहेंगे। एहतमाम करो जागने का, इबादत करने का। और वो मैंने बता ही दिया कि ऐसी इबादत से तो सो जाना जो फजर की नमाज ना पढ़ो। वो एक आदमी वजीफा पढ़ने लगा सोना बनाने का, सर रात तो कहता रहा सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। जब वो टाइम आया कहने लगा पत्थर ही हो जा, वो पत्थर ही बन। कौम के अंदर सलाहियत नहीं, तरीका नहीं। ये भी कोई बस एक चीज याद कर रखी है, टिकड़ा वाली ईद है, हलवे वाली ईद है। शाम को देखो ना मौलवी को परेड करते हुए, वादन टिकड़ा दी मैं मसीत बनावा ते हलवे नाल लपावा। मौलवी बड़ा उस्ताद है, मसला सही नहीं बताता जिसमें कब्र का भला हो, कयामत का भला हो, हशर का भला हो। आखिर हलवा पकाओ, इन्हों को आखो ना कि असा हलवा तो पकेसू पर तैं को कख नहीं देंगे, वो लाख सिर्फ हलवा पकाना हराम है, खाना ही नहीं चाहिए था कि गुनाह है। साको जो नहीं देता फिर जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुमने भी इनको आदत डाल रखी है मरने में, जीने में। मरे हुए बाप के कपड़े वो जो उसके बदन से उतरे हैं ना, हाथ नहीं लगाते। हाथ लाया, अगर कोई बच्चा हाथ लगा देना डाली पड़े भजका तेरे मोए हुए बाबा देने, ये तेरे मोए हुए डाले देना, हाथ ना लावी ठीक नहीं होता। लक्कर नाल चुक दी है, तिनके नाल चुक दी है, इन्हें को हाथ नहीं लाना। ये कपड़े तो मोए हुए देने, तो तू मोए हुए बाबा की डाली नहीं। ये कोई नहीं आदा भी कपड़े तो मोए हुए देने। ऊ कोठड़ी बिच नहीं समझे कि ना ध्याड़ा कि ही कोठड़ी बिच डाडा मोयाई, अब्बा जी मोयाई, फलाना मरियाई। कोठड़ी तो नफरत है, खटड़ी तो डर लगता है, कपड़िया तो डर लगता है। और दुकान मोए हुए दी नहीं, दुकान और जायदाद हूं दी नहीं जरा कबड़ी चला गया। उनको तबर्रक समझ देने, कपड़े मोल भी किते, खटड़ा मोल भी किते। वो अस्पताल दी गंडड़ी, पुराने खल्ले, पुरानी जुत्ती, वो दवा दा लिबड़िया होया तकिया सिराना, वो मोल भी किते, दुकान अपने किते। खुदा हिदायत करी, ये सारी चीजों की पहचान कर। अल्लाह मुसलमान को अकल दे, शऊर दे, समझ अता फरमावे। इसलिए कुरान कहता है रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। अल्लाह फरमाते हैं तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं, उनसे पहलों का भी रब मैं, तमाम की तमाम को पालने वाला, संभालने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला मैं हूं। जवानी कितनी अच्छी चीज है, ये भी रब अता करता है। आदमी का दिल यूं कहता है जिस चीज पे भी लात मारूंगा पानी निकाल दूंगा। और ऐसा वक्त भी आ जाता है कि मियाँ जी उठ खलो, आखिर किवें उठा नहीं जाता। हाय हाय, इस जिंदगी में कितने तौर आए, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ेपा आया, कब्र आ गई, मगर समझ ना आई, समझ ना आई। इसलिए कहता कि जो खेलों में तूने लड़कपन गंवाया, जो खेलों में तूने लड़कपन गंवाया, तो बदमस्तियों में जवानी गंवाई। जो खेलों में तूने लड़कपन गंवाया, तो बदमस्तियों में जवानी गंवाई। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हालत में तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है।
दार अरकम में नमाज के लिए वुजू फरमा रहे हैं, नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं। फारूक आजम ईमान लाने के लिए तशरीफ लाए, हाजिर खिदमत हुए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगे। दार अरकम के मकान में अंदर कोठड़ी में फारूक पूछने लगा, मेरे आका ये क्या करने लगे हो? फरमाया, उमर नमाज पढ़ने लगा हूं, रब की इबादत करने लगा हूं। फारूक आजम ने पूछा, सारा जहान रब की इबादत बैतुल्लाह में करता है, खाने काबा में करता है, आप यहाँ छुपकर कोठरी में नमाज पढ़ते हैं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फारूक तेरी कौम मुझे बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देती, सजदा नहीं करने देती। अगले दिन मैंने नमाज का सजदा किया था बैतुल्लाह शरीफ में, हरम मोहतरम में, खाने काबा में। मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला कर रख दिया, मैं सजदे से सर न उठा सका। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हरम मोहतरम में बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर कुरान मजीद की 2-4 आयतों की तिलावत फरमाई। सारा मक्का मारने लगा, किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने जूता मारा, किसी ने पत्थर मारा। सिद्दीक अकबर पहुंचाए और आपने आवाज भी लगा दी, अतक़्तुलून रजुला, तुम उस आदमी को कत्ल क्यों करते हो जो इतनी बात करता, आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्यों मारते हो जो इतनी बात करता है कि रब मेरा अल्लाह है? इस जुर्म में मारते हो। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मना करते करते, बचाते बचाते, हटाते हटाते एक जालिम आगे बढ़ा और उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतने बल चढ़ाए। एक और कमीने ने आगे बढ़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से झटका मारा, हुजूर के मुंह मुबारक में झाग आ गए। इस दीन के पीछे, इस कुरान के पीछे बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। आज तुमने तमाशा समझ रखा है। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज कर दिया, मेरे आका जब तक मैं नहीं आया था कोठरियों में नमाज होती थी, छुप छुप कर आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं गुलाम बन चुका हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, ईमान ला चुका हूं, और आप फिर भी घर में नमाज पढ़े तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ? बैतुल्लाह में चलें, खाने काबा में चलें, आप वहां चलकर नमाज अदा फरमाएं। उमर तेरी कौम मारेगी, हमारी तादाद बड़ी है, बहुत थोड़ी है, हम बड़े कमजोर हैं, मारते हैं, मेरा गला घोटा गया, मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला के रख दिया गया। खत्ताब का बेटा कहता है, आका सब कुछ हुआ, खुद देखा और खुद किया, सब कुछ सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारे मामलात मेरे आने से पहले थे। मेरे आका अब चलो बैतुल्लाह में नमाज आप पढ़े, मैं जानूं सारा मक्का जाने। सारा अरब जाने, मैं जानूं। आप बेपरवाह होकर अपने रब की इबादत करें, बैतुल्लाह में चलें, मेरे जिम्मे आया सारा मक्का। आप लोग तो ये नुक्ते समझेंगे ही नहीं। चाहिए ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चलो अभी अभी तो तू मुसलमान हुआ है, एक हफ्ता तो ठहर जा, फिर चलेंगे, हम तुझे भी देख लेना कितने पानी में है, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है।
نہیں، फारूक आजम की जुबान पर हुजूर को इतना एतबार था, उसी वुजू से उसी वक्त बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। तुझे 7 साल हो गए कलमा पढ़ते पढ़ते, तेरे कलमे का कुछ ना बना, तेरे दीन का कुछ ना बना, तेरे ईमान का कुछ ना बना, तेरी चिट्टी दाढ़ी होगी पढ़ते पढ़ते, ना मालूम मरते वक्त कुफर पे मरेगा या कलमे पे मरेगा। लेकिन फारूक को कलमा पढ़े हुए 2 मिनट नहीं हुए, काली कमली वाले को उसके कलमे पे कितना बड़ा यकीन है, फौरन बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। और खाने काबा में जाकर फिर फारूक आजम ने हमारे वाला काम नहीं किया। ओ जी, आज पहला दिन है ना, जरा जल्दी से पढ़ लो, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा हूं कोई मक्के वाला आ ना निकले, हाँ खामखा झगड़ा ना हो जाए, झगड़ा अच्छी चीज नहीं ना जी, आप जल्दी से जरा फारिग हो जाए। ये नहीं, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, ओ मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूं, आओ देखो करो क्या करते हो, मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी, मक्के वालों, जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए। तो कितना बड़ा जवान होगा जिसके आने से नबी ने बैतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई, बैतुल्लाह में नमाज हुई, खाने काबा में नमाज हुई। कितना बड़ा मुनसिफ, कितने बड़े अदल का मालिक, बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इंसाफ काम आ गया, आगे बढ़कर चाबियां हवाले कर दी भाइयों ने। सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम और आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ। शहादत यूं ही नहीं मिला करती, इसके लिए तो बड़ी तगोदाव करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े दामन फैलाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यूं ही तो अल्लाह पाक ने ऐलान नहीं कर दिया, फरमाया वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा न कहें। बल अहियाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी की तमीज नहीं है, समझने का सलीका और शऊर नहीं है।
फारूक आजम दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा अर्जुकना शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं। काबुल से लेकर तराबुलस तक इस्लाम का झंडा लहराने वाला फारूक आजम, 900 जामिया मस्जिदें, 9000 बड़ी छोटी मस्जिदें बनाने वाला फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके दौरे खिलाफत में इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, इस्लाम को इतना उरूज मिला, और वो बात पूरी करके दिखाई जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि फारूक को अगर ईमान मिल जाए तो तेरे इस्लाम को शान मिल जाएगी, शौकत मिल जाएगी, अजमत मिल जाएगी। अजमत बन के दिखाया और मोहब्बत का मेयार अर्ज कर दिया, वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ओ मेरे परवरदिगार, मदीने की मौत अता फरमा, यार के शहर की मौत अता फरमा। अल्लाह मियां ने जवाब दिया, मेरे फारूक मैं तेरे दिल की धड़कनों से वाकिफ हूं, तेरी दुआ के सिर्फ अल्फाज नहीं, मैं तेरी रगों के खून के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। तुझे तो दफन के लिए ऐसी जगह दूंगा बिल्कुल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में, बराबर में। क्यों? मेरे महबूब को भी तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इतना करीब तुझे खबर की जगह दूंगा, जब उसका दिल करे वो तुझे देख ले, जब तेरा दिल करे तू दीदार कर ले। तुझे तो इतना करीब जगह दूंगा, तू मदीना मांगता है। और फरमाया, फारूक तुझे ऐसी मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर की मिट्टी आएगी, किसी की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, तो तबूक की मिट्टी आएगी, कादसिया की मिट्टी आएगी। पर मेरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए फजर की नमाज आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए सारा मदीना आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मदीना आएगा, फजर की नमाज आएगी। अल्लाह फरमाते हैं, ओ फारूक तेरी गवाही देने के लिए मेरा कुरान आएगा। नमाज पढ़ाते हुए अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की, मस्जिद नबवी हो, मेहराब नबी का, मिंबर नबी का, मस्जिद नबी की, शहर नबी का। कौन सा शहर? ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे महबूब मुझे तेरे इस शहर की गलियों की कसम, बिहादल बलद, मेरे महबूब तेरे वतन की कसम, तेरे शहर की कसम, तेरे गलियों की कसम। इतना बड़ा अजीम जवान पेशीमान बना खड़ा है, नबी के मुसल्ले पे खड़ा है, बेईमान मुनाफिक ने छुरा मारा, नमाज में छुरा मारा, कुरान पढ़ते हुए को छुरा मारा, फजर की नमाज पढ़ाते हुए को छुरा मारा। वो फारूक जो इंसाफ का इतना बड़ा अलमबरदार था, मदीने में है, जलजला आ गया, भूचाल आया जमीन में, हम लोग दुआ मांगेंगे, डर के मकान छोड़ के बाहर भागेंगे, दुकानों से बाहर निकल जाएंगे, दब कर ना मर जाएं। फारूक की शान बताऊं, कोड़ा उठाया और जमीन पे मारा, उस्कुन, ठहर जा,
जमीन पे कोड़ा मार दिया, बुर्रा मार दिया, ठहर जा, जमीन ठहर गई। यूं फरमाया मैं तुझ पे इंसाफ करता हूं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। जमीन ठहर गई। किसी ने आकर खबर दी आतिशफिशां पहाड़ से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, बस्तियां जल रही हैं और वो आग चल रही है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर उतार कर दे दी, फरमाया जल्दी जाओ आग के सामने ये चादर कर दो और आग को बता दो ये फारूक आजम की चादर है। तारीख शाहिद है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की चादर को देखकर आग बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, खत्म नहीं हुई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। जमीन पे जलजला आया तो दुर्रा मार दिया, आग जलाती जा रही है तो चादर देखकर वापिस हो गई। पानी को खत लिख दिया, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूं, फारूक आजम की चिट्ठी रुका दरिया में रेत में दफन कर दिया गया। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह नहीं देखा। जुमा पढ़ाते वक्त, खुतबा इरशाद फरमाते वक्त आवाज लगा दी मुसलमान लश्कर को, होशियार हो जाओ, चारों तरफ तुम्हारे काफिर घेरा डालने वाला है। कई सौ मील दूर थे, वायरलेस न थी, रेडियो न था, टीवी न था, टेलीग्राफ न था, टेलीफोन न था। हवा में फारूक आजम की आवाज को मदीने मस्जिद नबी से उठाकर सहाबा कहते हैं हमने इस तरह आवाज सुनी जैसे फारूक हमारे सर पे बोल रहा हो। हवा ने एहतराम किया, जमीन ने एहतराम किया, आग ने एहतराम किया, पानी ने एहतराम किया। तू अगर एहतराम नहीं करेगा तो फारूक की शान में कमी नहीं आने वाली। इतना बड़ा अजीम जवान काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब फारूक जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे 70,000 आदमी साथ जाएगा। न जाने कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे होकर जन्नत में जाएंगे। इतना अल्लाह वाला जवान, इतने खौफ वाला जवान। मैं एक बात अर्ज करूंगा, अंदाजा लगा लेना, तेरी बात का लिहाज काउंसलर करेगा, तेरा लिहाज चेयरमैन करेगा, तेरा लिहाज थानेदार करेगा, तेरा लिहाज कोई मामूली अफसर करेगा, तेरा लिहाज कोई दुनियादार करेगा, तेरा रिश्तेदार तेरा लिहाज करेगा, तेरा यार तेरा लिहाज करेगा। फारूक आजम की सीरत और जिंदगी के बारे में इतनी सी बात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की अता का क्या कहना, उसकी देन का क्या कहना। जो फारूक फर्श पे पसंद करता है, मालिक की कायनात अर्श पे वही पसंद फरमाते हैं। कुरान करीम में तकरीबन 19 मकाम ऐसे हैं जो फारूक ने फर्श पे चाहा, अल्लाह ने अर्श से कुरान बनाकर वही उतार दिया। फिर इंशाअल्लाह किसी जुमे में तफसील से वो बातें अर्ज करूंगा कौन कौन सी आयत फारूक आजम की हिमायत में उतरी। मगर आज तो हाल ये है फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी है, लहू बहरा मेहराब मिंबर में जख्मी किया गया, लेकिन फिर भी अदब देखो, एहतराम देखो, मोहब्बत देखो। फारूक आजम ने अपने बेटे को बुलाया और बुला करके फरमाया जाओ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जाकर मेरा सलाम पहुंचा और जाकर अर्ज कर दे गुंबद खिजरा में तूने जो अपने लिए कब्र की जगह रखी हुई है, आज फारूक आजम भीख मांगता है, खैरात मांगता है, कब्र के लिए जगह मांगता है ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम कर लो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए।
جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلام عرض کیا اور یوں فرمایا کہ جا کے یوں کہہ دینا کہ ہے چھپا کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر. فاروق اعظم دنیا سے جا رہا ہے, فاروق اعظم کے آخری سانس ہے, فاروق اعظم جیسا جوان دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے. آپ کا حجرہ ہے, آپ کی یہ جگہ ہے, آپ نے اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نام پہ فاروق اعظم قبر کے لیے جگہ مانگتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی اور مانگتا میں نہ دیتی, اس لیے نہ اور نبی آئے, نہ اور گنبد خضرا بنے, نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ ملے. کون دیتا ہے؟ خدا کی قسم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقہ کیا دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا. اسے معلوم ہے کہ مجھے قبر کی جگہ باہر ملے گی, اپنے خامن اور اپنے ابا ابو بکر سے دور ملے گی. لیکن یوں فرمایا عبداللہ مانگنے والا وہ جوان ہے, جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ فاروق وہ جوان ہے جس کو میرے محبوب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگ مانگ کے لیا تھا, اس لیے جواب نہیں دے سکتی. جہاں میں نے اجازت دے دی پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو. واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں. مجھے اٹھا کے بٹھا لیا, جواب سنا دیا. پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو. اجازت مانگ لی, اجازت مل گئی. پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی, زبردستی اجازت لے لی, ڈانٹ دے کر اجازت لے لی. جب میرا دم نکل جائے, جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے, میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا. دوبارہ اجازت مانگنا. نہ میں زندہ ہوں, نہ میری حکمرانی ہو, نہ میری حکومت ہو, نہ میرا ڈر ہو, نہ میرا خوف ہو, اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا, ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا. تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے. عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو. جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا. پھر اجازت ملی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا. فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے. یکم محرم الحرام ہے, محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا. یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک. اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں, قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں.